Okay, so let us see one animation which is important to understand how the Faraday's law actually works. Yes, just observe carefully. Okay, so here we can see clearly that there is a coil and the endpoints of which are connected to this bulb, right? And and there is a magnet, okay, which consisting of north and south poles here near this coil. And now, if you want to produce the EMF, electric EMF in this coil, which will just glow the bulb, then we'll have to just move this magnet. ठीक है, अभी इस मैग्नेट को हमको मूव करना पड़ेगा. तो अभी देखो जैसे हम मैग्नेट को मूव करेंगे, देखो अभी इसमें मैं बहुत स्लोली मूव कर रहा हूँ, इसलिए इसमें से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है. बट व्हेन वी जस्ट मूव इट with very high speed, in that case we can see clearly that the EMF will be produced in this coil, and that EMF will be more as the rate of change of magnetic flux is more. जैसे देखो एक्चुअली साउंड इफेक्ट भी उसमें है कि जैसे हम इसको नजदीक लेके जा रहे हैं तो उसके इसमें साउंड भी उसमें से प्रोड्यूस हो रहा है, देख सकते हो ठीक से. And if we just switch on the field lines, then we can also make it clear that how the field lines are going to cut this coil. Basically हम ये मैग्नेट को अंदर पास करते हैं तो फील्ड लाइंस जो कट हो रहे हैं वो बढ़ते हैं और उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक ईएमएफ पैदा होता है. बट व्हेन वी टेक इट स्लोली, देन इन दैट केस द ईएमएफ विल बी नॉट प्रोड्यूस्ड. ठीक है, और उससे भी आगे जाके वोल्ट मीटर भी हम यूज कर सकते हैं. यहाँ पे देखो जो यहाँ पे वोल्टेज मेजर करेगा. ठीक है, we just will switch off the field lines so that we can focus on the voltage which is produced here. So see here. Continuous alternating voltage will be produced here by just moving this magnet inside this coil. Okay. At the same time, we want also to understand that the number of turns per unit area length of this coil also just matters. देखो यहाँ पे अभी सपोज ये जो कॉइल है इसके नंबर ऑफ टर्न्स कम है, दिख रहा है ठीक से. उसकी वजह से अगर हमने ये मैग्नेट अगर यहाँ पे इस कॉइल के अंदर अगर इंट्रोड्यूस किया तो उसकी वजह से जितना इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है तो वही अगर हम सपोज इस कॉइल के अंदर उसी स्पीड से अगर इस मैग्नेट को लेके जाते हैं तो उतना ज्यादा ईएमएफ पैदा नहीं होने वाला है. क्यों? क्योंकि इस कॉइल के जो नंबर ऑफ टर्न्स है वही कम है और उसकी वजह से उसका जो एबिलिटी है to produce self-induced EMF will also be less in this case, like this. Okay, so if you, and one more thing that is that if you just shuffle the south and north poles, then अब देखो जैसे हम ये मैग्नेट को नजदीक लाते हैं तो देखो यहाँ पे इस तरफ हमको ये मिला, राइट, और दूर लेके जाते हैं तो इस तरफ मिला. ओके, अभी अगर उल्टा करेंगे इस पोलरिटी को, जब नजदीक लाएंगे तो हमको लेफ्ट साइड में ये मिलेगा और दूर लेके जाएंगे तो राइट साइड में हमको डेविएशन मिलेगा वोल्टेज का, जो कि करंट का भी वही वैसा ही होने वाला है. ओके, तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं. सो दिस इज अबाउट द Faraday's law, which tells us simply that whenever there is a change in magnetic flux linked with a coil, there is a production of induced EMF in the coil. And the second law tells us simply that whenever there is the magnitude of induced EMF is actually directly proportional to the rate of change of magnetic flux. And Lenge's law simply tells us that the direction of induced EMF is such that it opposes the changing magnetic flux which causes it to produce. Okay, तो ये सब जो चीजें हैं तो वो हमने ऑलरेडी देखी है लास्ट सेशन में. तो move further.
in this lecture. Okay, so yes, so last lecture में हमने एनर्जी और मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है तो वो देखा था, और उसके पहले लेक्चर में हमने जनरेटर का भी कंसेप्ट देखा था, जनरेटर या डायनामो के बारे में भी हमने सब देखा था. So now in the next lecture, in the today's lecture, let us see the next concept, that is about the AD currents. Okay, so see here what is AD currents and how they are produced. You have to understand in today's lecture. Yes. ठीक है, देखो अभी ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ये देखा था कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में है, और उसमें अगर एक करंट लूप अगर हम कंसिडर रखते हैं तो नॉर्मली उसमें से फ्लक्स पास होता है, बराबर. फ्लक्स विल बी पासिंग थ्रू दिस करंट लूप, और करंट लूप नहीं, जस्ट सिंपली लूप हम रखते हैं, नॉर्मल लूप अगर आप रखते हैं तो उसमें से फ्लक्स पास हो रहा है, चलो ठीक है. बट नाउ इफ सपोज वी टेक दैट करंट लूप आउटसाइड, जैसे ही हम उस करंट लूप को बाहर के डायरेक्शन में खींचते हैं तो उस केस में क्या होता है ना कि देयर विल बी अ प्रोडक्शन ऑफ induced EMF in that loop which will cause a current to flow through that loop. Suppose that this is a loop. Suppose it is placed here in this magnetic field like this. Okay, with one of its edges outside the magnet. Okay, तो एक पार्ट उसका बाहर में है और बाकी तीन पार्ट्स जो है वो अंदर में है, बराबर. ठीक है, अभी जैसे हम इसको बाहर खींचते हैं, as soon as this loop is pulled out in this direction here, in this way, what will happen is the magnetic field will just start changing. Magnetic flux passing through this loop will just start changing, and because of that, a current will just set up into this loop. तो इस लूप के अंदर एक इस तरह का करंट सेटअप हो जाता है जो कि इस डायरेक्शन में फ्लो होता है, और उसकी वजह से तो उसको हम बोलते हैं कि induced EMF has been produced and induced current has been produced in this loop. No doubt. Okay, ये हमने ऑलरेडी देखा है, ठीक है. लेकिन अभी ये सोचो कि अगर इस लूप के बदले, ठीक है, इस लूप के बदले अगर हमने एक प्लेट अगर कंसिडर कर लिया, इस लूप को हटा दो 2 मिनट के लिए, और उस लूप के बदले अगर हमने एक प्लेट ले लिया सपोज, ठीक है, ये प्लेट है मान लो, और इस प्लेट को हमने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, ठीक है. सो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड विल बी पासिंग थ्रू दिस प्लेट आल्सो. Magnetic field will be cutting the lines of force here, and that's why we can see the lines of force will be cutting this plate at these points, and hence, ठीक है. अब ये प्लेट इस तरह से है, ये प्लेट हमने अंदर डाल के रखा है मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड के अंदर, ठीक है. अभी अगर इस प्लेट को हम मूव करना चालू करते हैं तो क्या होगा? If we start moving this plate outside the magnetic field, the same thing will happen here also, in this case also. तो यहाँ पे भी सेम वही बात होगी कि जब यहाँ पे ये प्लेट आगे जाएगा तो उसकी वजह से इस प्लेट के अंदर भी एक करंट दौड़ने लग जाएगा,
क्योंकि ये प्लेट जो है वो मेटल का बना हुआ है, तो उसकी वजह से इस प्लेट के अंदर ऑटोमेटिकली एक करंट यहाँ पे फ्लो होने लग जाएगा. द इलेक्ट्रॉन्स विल जस्ट स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन हियर. सो चाहिए तो हम इस इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है वो सपोज अलग कलर से हम ड्रॉ करते हैं उसको. ठीक है. So as soon as this plate will just start moving in outward direction, the electrons will just start flowing in this direction. But now in this case here, there is no fixed path as it was in the previous case. पहले वाले केस में क्या था, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूप में से ही घूमना था, है कि नहीं, लूप में से ही वो इनको जाना था. लेकिन अभी जबकि ये प्लेट है तो वो प्लेट तो यूनिफॉर्म होता है. उस प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर भी इस तरफ से ऐसे दौड़ने लगेंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स अंदर ही अंदर इस तरह से सर्कुलेट करेंगे और करंट फॉर्म करेंगे, so this phenomena is actually called as the production of eddy currents. Okay, so the production of circulating currents in a conductor, metallic conductor, produced due to the when a changing magnetic field, produced due to the relative motion between the magnetic field and the metallic conductor, is actually called as the eddy currents. This is the concept of eddy currents. Remember, what do you mean by the eddy currents? The currents, circulating currents, which are produced in this metallic conductor whenever it is kept in a changing magnetic field. I'll repeat again. The circulating currents produced in a metallic conductor whenever it is kept in a changing magnetic field. अभी जरूरी नहीं कि magnetic field ही change होना चाहिए, ठीक है ना. There must be a relative motion between the magnetic field and the metallic conductor. Then only there will be a production of the eddy currents in this conductor here. So इस metallic conductor के अंदर eddy currents तब पैदा होंगे जब यहाँ पे ये metallic conductor को हम या तो changing magnetic field के अंदर रखते हैं या तो उस metallic conductor को ही move करते हैं. metallic conductor के magnetic field के अंदर अगर इस metallic conductor को अगर हम move करते हैं तो उसकी वजह से वहाँ पे eddy currents पैदा होंगे. eddy currents मतलब ये just circulating currents होते हैं. इस मेटालिक कंडक्टर के अंदर ही अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं रैंडमली, ठीक है ना, सर्कुलेटिंग पाथ में वो घूमते हैं, तो उसको हम एडी करंट्स बोलते हैं. अभी याद रखो ठीक से कि दिस एडी करंट्स हैव टू प्रॉपर्टीज, टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एडी करंट्स. तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है एडी करंट्स का, तो ये है कि इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर. Opposes the relative motion. Obviously, it is according to the Lenz law. ठीक है, Lenz law क्या कहता है, ये हमको पता है already कि whenever this magnetic field will be produced, whenever the magnetic field will change, there will be production of induced EMF, and that induced EMF will be directed in such a way that its effect will be to reduce the change in magnetic flux, which is causing it to produce, right? So इसलिए यहाँ पे जो है एडी करंट जब पैदा होते हैं तो उनका भी डायरेक्शन ऐसा होता है जो इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज को वो अपोज करते हैं, या तो उस मोशन को, रिलेटिव मोशन जो कि मैग्नेटिक फील्ड और ये कंडक्टर के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो उस मोशन को भी वो अपोज करते हैं. तो ये अपोज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एडी करंट्स का. उसका दूसरा प्रॉपर्टी जो है ये है कि इट प्रोड्यूसेस द हीट. ठीक है ना, एडी करंट्स व्हेन प्रोड्यूस्ड इन द कंडक्टर दे जस्ट प्रोड्यूस हीट इन द कंडक्टर. ठीक है, हीट प्रोडक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस एडी करंट्स. एंड हीट प्रोडक्शन होने की वजह से वहां पे टेम्परेचर जो उस कंडक्टर का है वो बढ़ता है. सो द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर एक्चुअली इंक्रीजेस ड्यू टू दिस प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट्स इन दैट कंडक्टर हियर. दैट मीन्स जैसे ये एडी करंट्स पैदा होंगे तो उसकी वजह से एक बहुत सारा हीट पैदा होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सीधा देखो यहाँ पे कि जब इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे तो घूमने के टाइम वो एटम्स के ऊपर कोलाइड भी तो होंगे कि नहीं, जरूर कि नहीं. जो इनके बीच में, पाथ के बीच में जो एटम्स आते हैं, उन एटम्स के अंदर उनको कोलाइड होना पड़ेगा, रिबाउंड होना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा, फिर रिबाउंड होना पड़ेगा. सो व्हेनेवर these electrons collides with atoms, it gives us the resistance, it gives rise to the resistance, and the energy of the electrons will be lost. Kinetic energy of the electrons will just get lost when the electron will just collide on an atom, and because of that this energy, kinetic energy, will just get converted into the heat energy, which increases the temperature of the metallic conductor
ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ दिस एडी करंट्स हियर। तो ये एडी करंट्स के प्रोडक्शन की वजह से जो हीट पैदा होता है, तो वो हीट इसीलिए पैदा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स के ऊपर कोलाइड करते हैं एंड दिस कोलिजन्स गिव राइज टू द हीट प्रोडक्शन हियर। तो ये दो प्रॉपर्टी समझा ठीक से। These are the two properties of eddy currents which are used in many applications, ठीक है ना, in the day to day life। तो जब हम देखते हैं कि डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस के अंदर हमको ये एडी करंट्स मिलते हैं। जैसे कि उसका सबसे पहला एप्लीकेशन जो है तो वो है गैल्वेनोमीटर। तुमने देखा होगा कभी कि गैल्वेनोमीटर के अंदर जो एडी करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब गैल्वेनोमीटर के अंदर हम देखते हैं कि एक just wait। Yes, see, this is the simple diagram of galvanometer, which we already have seen it in the previous chapters। ठीक है, तो इस प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने ये गैलोमीटर ऑलरेडी देखा है। तो इसमें होता क्या है, देखो ठीक से, कि whenever the current flows through this galvanometer, what happens is there will be a deflection in this pointer। ठीक है, ये जो करंट कैरिंग कॉइल है तो वो एक्चुअली घूमता है, और घूमने की वजह से ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है या पॉइंटर जो है वो मूव करता है। सो द सपोज दैट देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन दिस पॉइंटर हियर, तो ये पॉइंटर यहाँ पे आ जाता है सपोज। ठीक है, तो ये तुमने देखा है कभी कि इस गैलोमीटर का जो पॉइंटर है, तो वो जब हम करंट को बंद कर देते हैं, सो एज सून एज द करंट इज स्विच्ड ऑफ, द पॉइंटर कम्स बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन वंस अगेन, राइट। तो ये जो पॉइंटर है वो हमेशा उसके ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है, लेकिन ये ओरिजिनल पोजीशन में बहुत धीरे धीरे आता है। ये तुमने देखा होगा ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि उस जैसे ही ये पॉइंटर अपने ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आता है, तो आने के टाइम ये जो सिलेंडर घूम रहा है, यहाँ पे जो सिलेंडर है कि नहीं अंदर, ये देखो, ये जो सिलेंडर होता है वो जब घूमता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूम रहा होता है। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये सिलेंडर घूम रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि एडी करंट्स यहाँ पे पैदा होते हैं, एंड दिस एडी करंट्स एक्चुअली अपोज द मोशन ऑफ दिस सिलेंडर हियर। तो इस सिलेंडर का जो मोशन है वो अपोज करते हैं, और उसकी वजह से ही यहाँ पे जो पॉइंटर है वो धीरे 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 जाके अपने पोजीशन पे आता है। ठीक है, नॉर्मल पोजीशन पे आता है। इट डजंट ऑसिलेट और इवन इट डजंट स्ट्राइक ऑन द एज ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर। तो इस गैल्वेनोमीटर के एज पे वो जाके पटकता नहीं है, स्ट्राइक नहीं करता है। तो इट जस्ट स्लोली जस्ट मूव्स टू द ओरिजिनल पोजीशन and comes to the original position very slowly, just because the AD currents produced in this iron core, soft iron core, is just oppose the motion, relative motion between the magnet and this soft iron core in this case, and that's why this pointer just moves slowly due to the production of AD currents। ये सबसे पहला एग्जांपल है
देख सकते हो ठीक से। अब देखो दूसरा एग्जांपल एडी करंट्स का है। Eddy currents are also produced or used to melt the metal. सपोज एक मेटल है, ठीक है, और इस मेटल को हम सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। समझो ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक मेटल रख दिया, ठीक है, मेटल का एक गोला है वो रख दिया, और इसको अगर सपोज हमने घुमाना चालू किया, ठीक है ना, जैसे हम इस मेटल को घुमाना चालू करेंगे ना, तो क्या होगा रेगुलिक से, as soon as this metal will just start moving and rotating at a very high speed like this, what will happen is the eddy currents will be produced in this metallic conductor, and these eddy currents will just increase the temperature of that metallic conductor, and this increase in temperature, uh, when the temperature of this metallic conductor will rise up to the melting point of that metallic conductor, so in that case the metal will just start melting. ये जो मेटल है वो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने लगेगा, क्योंकि उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हुआ है। और हीट किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, वो मेटल जो है वो हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाया, या उल्टा भी हम कर सकते हैं। देखो ठीक से, इफ सपोज मेटालिक कंडक्टर इज केप्ट स्टेशनरी बट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट इज रिवॉल्व्ड, ओके, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको अगर हम सपोज हाई स्पीड में अगर घुमाते जाते हैं, so this magnetic field consisting of north and south pole is just rotated about this axis, about this metal conductor. So because of that also the eddy currents will be produced in this metallic conductor, and these eddy currents will produce a large amount of heat in this conductor, which will cause melting of that conductor. तो ये जो metallic conductor है वो यहाँ पे melt होता है, तो just by keeping it inside the magnetic field, changing magnetic field, remember. So this is the application of eddy currents. This is called as the induction furnace. इंडक्शन फर्नास इसको बोलते हैं। फर्नास मतलब जिसमें भट्टी, जिसके अंदर जो सभी जो मेटल्स होते हैं, तो मेटल को पिघलाया जाता है, तो मेटल को पिघलाने के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है, इसको हम बोलते हैं इंडक्शन फर्नास। और तीसरा एप्लीकेशन उसका हम देखते हैं डेली लाइफ के अंदर। तुमने देखा होगा इंडक्शन कुकर करके एक इंस्ट्रूमेंट आता है, तुमको पता होगा, मार्केट में भी बहुत सारे एड्स उसके चल रहे हैं। सो इंडक्शन कुकर इज जस्ट लाइक अ rectangular plate like this, and some coil like design on it like this. उसके ऊपर इस तरह सा कॉइल के जैसा डिजाइन होता है ऊपर, और उसके ऊपर जब भी कोई भी हम बर्तन अगर रखते हैं, समझो ये बर्तन हमने यहाँ पे रख दिया, ये मेटल का बर्तन है सपोज, ठीक है, तो और अभी इस बर्तन के अंदर हमने कुछ भी जो हमको चाहिए वो रखा हुआ है सपोज इस तरह से, ठीक है, तो अभी जैसे हम ये स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है ना कि ये यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। दिस रीजन includes the changing magnetic field actually. The magnetic field will be very high speedily changing here in this region, and in this changing magnetic field this metallic conductor will be kept here, and because of this changing magnetic field the heat will be produced in this container, and this heat will be supplied to the whatever it may be there in the cooking portion here. यहाँ पे जो cooking portion हमने यहाँ पे रखा है, जो हमको यहाँ पे उसका टेम्परेचर बढ़ाना है या जिसको हमको हीट करना है, तो ये मटेरियल यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये मटेरियल हीट कहाँ से मिलता है उसको, ये जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है उस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने ये कंटेनर रखा है जो कि मेटल का है, और उस मेटल के अंदर ही एडी करंट्स पैदा होते हैं, और उसकी वजह से वो मेटल जो है वो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और उसकी वजह से हम यहाँ पे खाना पका सकते हैं। बट ये पे एक बात याद रखो कि मेटल ही चाहिए उसके लिए, एडी करंट्स पैदा होने के लिए मेटलिक कंडक्टर्स जरूरी है। अगर हम उसके ऊपर सिंपली हाथ रख देंगे तो हमारा हाथ गर्म नहीं होने वाला है, ठीक है, तो दैट इज द reason why the hand doesn't get heated up due to the eddy currents, because no eddy currents are produced in our body, just because our body is not like a metallic conductor, ठीक है, metallic conductor नहीं है हमारा बॉडी, तो metallic conductor ही यहाँ पे चाहिए ताकि उसके अंदर एडी करंट्स पैदा हो सके। तो ये दूसरा एप्लीकेशन हमने देखा।
Even electric brakes of the railway also works on the same principle, that is of एडी currents. एडी करंट्स के प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रिक ब्रेक्स काम करते हैं. देखो उसके अंदर क्या करते हैं कि जो दो व्हील्स होते हैं रेलवे के, both of these wheels are connected by using an axle in this way. ये इस तरह से एक्सल इनके बीच में होता है, और जब ये रेल दौड़ रहा होता है तो दिस एक्सल also just rotates at a very high speed, and this axle is provided with a coil wound on it. तो इस तरह से उसके ऊपर एक कॉइल जो है वो वाइंड किया हुआ होता है यंत्र ब्रिक से, एंड इस कॉइल का जो कनेक्शन है तो वो एक्चुअली इंजन के अंदर होता है, ड्राइवर के पास होता है. ठीक है, दिस कॉइल विल बी कनेक्टेड टू द engine, means power supply, means this coil is not connected to the power supply initially. Suppose यहाँ पे एक switch है जो कि हमने पहले ऑफ करके रखा है. ठीक है, and there is a very high tension battery here, but switch is off, so no current will be flowing through this coil. As soon as we require, it is required that the train has to be to stop. अगर ट्रेन को हमको स्टॉप करना है, so immediately what happens is this switch is made on. जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, so very large current will just start flowing in this coil. इस coil के अंदर current चालू हो जाएगा, and as soon as the current start flowing through this coil, what will happen is a magnetic field will be produced in this coil here. तो इस coil के आसपास वाले region में एक बहुत strong magnetic field इस तरह से produce हो जाएगा, and इस magnetic field के अंदर ये जो सिलेंडर है या जो शाफ्ट है वो घूम रहा है. देखो ठीक से ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, और इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे बहुत मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और ये जो व्हील्स है तो व्हील्स के घूमने के साथ साथ उनका जो एक्सिल है वो भी घूम रहा है, और वो एक्सिल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमने लग जाता है. सो द सेम सिचुएशन विल बी ऑब्टेन्ड हियर, सिंस द मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक सिलेंडर अगर घूमता है या कोई भी एक्सिल अगर घूमता है तो द मोशन ऑफ दैट एक्सिल will just be opposed by the production of these eddy currents, and because of that the axle will be stopped from moving, and hence almost instantaneously the train can be stopped from moving. तो ये ट्रेन जो है वो मूव करना बंद कर देता है, एक थोड़ा डिस्टेंस आगे बढ़ने के बाद ही वो जल्दी वो बंद कर देता है मूव करना. So in this way this phenomena of eddy currents acts like a brakes in इलेक्ट्रिक ट्रेन्स. तो इलेक्ट्रिक ब्रेक के जैसा ये काम करता है ट्रेन के अंदर. ठीक है, ट्रेन को रोकने के लिए वो काम में आता है. हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर आल्सो देयर, बट इलेक्ट्रिक ब्रेक्स आर आल्सो used to brake the train, apply the brakes on the train obviously in this way. This is the third application we can see of this eddy currents, and also there are the many applications in day to day life also. Even साइकिल के सामने जो एक बल्ब रहता है तो वो भी एक तरह से एडी करंट्स का ही एप्लीकेशन है. ठीक है ना, डायनामो उसको बोलते हैं. Yes. Okay, so let us see the next topic in this chapter, that is about the self induction. It's very simple topic actually. Self induction. What is self induction? See, suppose we have a wire, एक कॉइल हमारे पास है सपोज, और ये कॉइल जो है वो एक सेल के साथ कनेक्टेड है ऑलरेडी. ठीक है, और जैसे हम ये स्विच ऑन या स्विच ऑफ कर सकते हैं. यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे बीच में एक स्विच है. ठीक है, यहाँ पे एक स्विच है जो हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं आराम से. ठीक है, जैसे हम इस स्विच को ऑन करते हैं, ये सपोज यहाँ पे स्विच है. ओके, अभी फिलहाल क्या है ना कि स्विच जो है वो
ऑफ है, राइट। बट व्हेन वी स्विच इट ऑन, तो जैसे हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो करंट स्टार्ट हो जाता है। सो एज सुन एज दिस करंट स्टार्ट फ्लोइंग, द मैग्नेटिक फील्ड विल जस्ट गो ऑन इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बनता जाएगा और बढ़ता जाएगा। सो जब ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा तो ऑब्वियसली इस कॉइल के अंदर जो करंट बढ़ रहा है, मीन्स करंट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, और उसकी वजह से ही वहां पे इस कॉइल के अंदर ही एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पैदा होगा। देखो अभी यहाँ पे हो रहा क्या है ना कि कॉइल के अंदर करंट फ्लो होने चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली डिपेंड्स ऑन करंट, बिकॉज वी नो दैट द सोलोनॉइड का अगर हम देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। यू नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलोनॉइड इज given by the formula mu naught into n into I, where I stands for the current and n stands for number of turns per unit length. Correct है? Okay. तो ये बन गया number of turns per unit length. Yeah, that is the magnetic field here. But because of this magnetic field, that means this magnetic field depends on the current. ठीक है? As current will increase, the magnetic field will also become more and more strong, and this magnetic field will also increase. ये समझ सकते हो ठीक से? सो करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के बीच में बिल्कुल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन दिस कॉइल। ओके, बट इफ यू जस्ट टॉक अबाउट द फ्लक्स हियर, तो फ्लक्स कितना है इस कॉइल के अंदर, तो देखो ठीक से। अच्छा, यहाँ पे ये जो है स्मॉल एन जो है ना, तो स्मॉल एन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सो वी कैन कॉल इट एज कैपिटल एन अपॉन एल, वेयर एल स्टैंड्स फॉर द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। सो यहाँ पे उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि दिस बी विल एक्चुअली बी इक्वल टू म्यू नॉट इनटू एन आई अपॉन एल। करेक्ट है? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन। बट इफ यू वांट टू फाइंड आउट द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस होल सोलेनॉइड, तो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस सोलेनॉइड? तो सोलेनॉइड में से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो कितना होगा? तो एक टर्न में से पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा? B इंटू ए के बराबर। करेक्ट है? B मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन एंड दैट इज मल्टीप्लाइड विथ एरिया A ऑफ दिस कॉइल। तो इसलिए फिर एक टर्न में से अगर B इंटू ए इतना फ्लक्स पास होता है, तो यहाँ तो पे तो टोटल n टर्न्स है कि नहीं, तो n टर्न्स में से टोटल कितना फ्लक्स पास होगा, तो उसको हम बोल सकते हैं कैपिटल N इंटू बी ए। This much will be the formula for the flux passing through this solenoid, right? And if we just put this value of B here, then we can get this phi to be simply equal to N into B के बदले यहाँ पे हम replace करेंगे, that is mu naught N I upon L, correct है? And that is to be whole multiplied with area, that is A here, so that we can just simplify this further and get this simplified as, देखो यहाँ पे क्या आने वाला है, म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू ए इंटू आई अपॉन एल। करेक्ट है? so this actually becomes the formula for the flux passing through this solenoid, and from this only we can just guess that this phi is going to be proportional to I. Okay, and the constant of proportionality between phi and I here is nothing but L, so that we can get this L is actually called as the self inductance, ठीक है, inductance of this coil। तो ये जो L है वो एक्चुअली म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल के बराबर बनता है। अभी डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस कैपिटल एल एंड दिस एल, दैट इज द लेंथ ऑफ दिस वायर हियर। चाहिए तो हम ऐसा करेंगे, इस स्मॉल एल को, इस लेंथ ऑफ द वायर को कैपिटल एल से नहीं बल्कि स्मॉल एल से डिनोट करेंगे, चलेगा? Yes, so let us denote the length of the solenoid by small l. Okay, तो ये small l हो गया। So accordingly, we can get the self inductance of this solenoid to be simply to be equal to mu naught n square area A upon length of this solenoid. So this is the formula for the self inductance of this solenoid.
व्हाट इज द सेल्फ इंडक्शन बाय द वे? देखो यहाँ पे हमने ये देखा कि जैसे करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इज बिकमिंग मोर एंड मोर स्ट्रांग हियर. Okay, as soon as the current goes on increasing, the magnetic field will just become more and more strong, and this magnetic field will associated with the same coil through which the current is flowing here. तो जिस coil में से current flow हो रहा है उसी coil के साथ associated magnetic flux भी change हो रहा है. करेक्ट है? तो इस तरह से जितना ये मैग्नेटिक फ्लक्स और ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा तो उतना इस कॉइल के अंदर एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ भी तो पैदा होता जाएगा. और इस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन है वो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ कैसा होगा? इट विल बी ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हियर. अभी यहाँ पे इस केस में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा मींस जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा तो उसका ऐसा होगा कि जिसकी वजह से ये करंट को कम करने के लिए ट्राई करेगा वो. तो इसका मतलब इस कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा उसका पॉजिटिव यहाँ पे और उसका जो नेगेटिव है, ये देखो ये यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे नेगेटिव बनेगा. मींस दिस कॉइल विल इटसेल्फ एक्ट एज अ बैटरी whose polarity of that battery will be like this, which will be positive and negative here like this. That means it is equivalent that there are two EMFs which are kept here. एक जो EMF वो applied EMF है और दूसरा EMF हमने इस कॉइल के अंदर जैसे ही वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है या करंट चेंज होता है उसकी वजह से एक दूसरा ईएमएफ पैदा होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ उसको हम बोल सकते हैं. दैट विल बी प्रोड्यूस्ड हियर इन द कॉइल. वी कैन कॉल इट एज ई डैश एंड दिस अप्लाइड ईएमएफ विल बी ई हियर. सो इस तरह से यहाँ पे जैसे ही हम ये करंट को चेंज करते हैं तो करंट के चेंज करने की वजह से यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है इस कॉइल के अंदर और इस फिनोमेना को सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है. रिमेंबर, what is self induction? The phenomena of production of induced EMF in a coil due to the change in current in the same coil, that is called as the self induction. Remember, I will repeat again. The phenomena of production of induced EMF in a coil due to the change in current in the same coil is called as the self induction. So this phenomena in which the current is changed and due to the current is changed in the same coil, because of that the self induced EMF will be produced in the same coil. मतलब उसी कॉइल के अंदर चेंज होने वाले करंट की वजह से उसी कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है and this phenomena will be called as the self induction, and the ability of this coil to produce the self induction is called as the self inductance. Remember, तो ये self inductance का concept हमको समझना है. And what is the formula for this self inductance? See it here. This is the formula for self inductance of a coil. और अभी उससे भी आगे जाके इस फाई को अगर हम फैराडेज लॉ के अंदर अगर डाल देंगे, क्योंकि व्हेनेवर दिस आई विल चेंज, जैसे ये आई चेंज होगा तो उसकी वजह से फाई भी तो चेंज होगा जरूर. और जैसे ही हम इस रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए ट्राई करेंगे और फैराडेज लॉ यूज करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी हमको मिल जाएगा. सो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी एक्चुअली इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाय dt, where phi can be replaced by L into I here, so that we can get this d by dt of L into I. Okay, so that L is going to be a constant which depends on the number of turns of the coil, then again area of the coil and this length of the coil as well, but I is the variable, so we can say this L can be taken out and di by dt will be left inside here inside this. So induced EMF produced in this such a coil due to the change in current will be given by this minus of L into di by dt. Okay, so this is the formula for induced EMF produced in this coil, and using this formula we can also find out the self inductance. तो self inductance कैसे हमको मिलेगा? तो it will be actually equal to, तो ये L अगर हमको निकालना है तो इस di by dt को हम नीचे लेके जाएंगे उस तरफ नीचे की तरफ, तो उससे हमको मिलेगा E upon di by dt. So this is actually going to be the formula for self inductance, which can be actually defined as, the self inductance can be defined as the induced EMF produced in the coil when the current in the coil changes at the rate of 1 ampere per second. Okay, or simply we can say that induced EMF produced in the coil per unit rate of change of current in the coil. Okay, मतलब E per unit di by dt, इसको ही हमको बोलना है. तो induced EMF produced in the coil when the current in the coil changes
at the rate of 1 ampere per second. तो जब किसी कॉइल के अंदर 1 एम्पियर पर सेकेंड इस रेट से इंड्यूस्ड करंट चेंज होता है, तो उस समय उसके अंदर जितना भी ईएमएफ पैदा होता है, उसी ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं, उसका सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। याद रखो। चलो ठीक है, सो दिस इज द concept of self inductance. We'll just see this next concepts in the chapter next time. So let us stop here. Okay, and one more thing,